Assalamu alaikum. So today we will learn about what is SAARC, what is the role of SAARC in political point and economic point, and also we will see what is the organizational structure of the SAARC. So let's start here. Here is a map. There are total 8 countries, which are 8 member countries of SAARC, which are Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and the Maldives and Sri Lanka. एंड सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यूज में सवाल भी आ सकता है कि सार्क में कितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। देख लें अब ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान एंड मालदीव्स, सॉरी भूटान नहीं, बांग्लादेश। These are the 4 Muslim countries, and how many landlocked countries in SAARC are Afghanistan, Nepal and Bhutan. And there are 2 islands which are Maldives and Sri Lanka. So let's go to the SAARC. What is SAARC and its role in political dimensions and economic dimensions? SAARC is basically South Asian Association for Regional Cooperation. It was established in 1985 with 7 members. But later on ये 8 members हो गए थे। अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन हो गया था। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका was the 7 members of SAARC. Let's go towards the political dimensions. Its SAARC's main aim is to promote peace, stability, trust and cooperation in South Asia. But political conflicts like Indo-Pak rivalry, border disputes, terrorism concerns और जो भी political conflicts होते हैं इन member countries के बीच, वो slow down कर देती है integration या जो भी increase होती है economic wise stability होती है उसको. Despite these conflicts, SAARC provides diplomatic platform where leaders of South Asian can meet and discuss regional issues. Despite of these conflicts, SAARC के थ्रू साउथ एशियन लीडर्स बैठते हैं और जो भी इशू होता है उसको डिस्कस करते हैं. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो SAARC promotes economic cooperation and integration among member states of SAARC and it has 1/4 of world's population. की इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे सार्क के थ्रू वाज सेप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच वाज प्रपोज्ड इन 2004 बट इट वाज इस्टेब्लिश्ड या इनिशिएटिव जब लिया गया था वो 2006 में लिया गया था टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड इंक्रीज इंट्रा रीजनल ट्रेड. टैरिफ्स क्या होता है? जो टैक्स लगते हैं गुड्स या एक्सपोर्ट जो कंट्री टू कंट्री करते हैं उन पे जो टैक्स लगते हैं उनको हम टैरिफ्स बोलते हैं. देन सेप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विच वाज साइंड इन 1995. इट वाज द अर्लियर स्टेप टुवर्ड्स द सेप्टा. सेप्टा के बाद सेप्टा साइन किया गया था या उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया था. सार्क डेवलपमेंट फंड, इट वाज SDF financing regional projects in social economic infrastructure sectors. Challenges which are faced by these organization or agreements and SAARC was low intra-SAARC trade. तो SAARC member countries से उनके बीच जो ट्रेड होती थी वो बहुत लो थी, like 5% of the 25% in Asian जो होती है उसका 5% से भी कम था. Political tension limits economic trust, uneven economic growth. Members like ये जो साउथ एशियन कंट्रीज थे इनमें भी अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ थी क्योंकि इंडिया 70% ऑफ सार्क GDP में कंट्रीब्यूट करता है. These are the challenges. Now we will see the organizational structure, how it works, how SAARC works. So summit meetings. It is a top authority. It is composed of head of states or governments of the member states. इट हेल्ड बाइनली मतलब कि एक साल में 2 दफ़ा होती है. डिफाइंस ब्रॉड पॉलिसीज एंड गोल्स. सेकंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इट हैज़ बीन कंपोज्ड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज. इट मीट्स ट्वाइस अ ईयर एंड रिव्यूज प्रोग्रेस एंड मेक्स डिसीजन ऑन न्यू प्रोग्राम्स. रिव्यूज़ करते हैं क्या प्रोग्रेस हुई थी और न्यू प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लिया जाता है. स्टैंडिंग कमेटी, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ द मेंबर स्टेट. इट प्रिपेयर फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज मीटिंग्स, मॉनिटर्स एक्टिविटीज़ एंड अप्रूव्स बजट्स अप्रूव करते हैं एंड मिनिस्ट्री मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं. Then programming committee, it is composed of senior officials of the member state. They screens and evaluate projects or programs. Technical committee, experts focusing on specific areas like agriculture, environment, health, education, technology, etc. SAARC secretariat, it was established in 1987 and it is located in Kathmandu, Nepal. It
is also an important point for MCQs. इट इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, जो कि 3 साल का उसका टेन्योर होता है, और ये रोटेशनल होती है ऑन द बेसिस अमंग मेंबर स्टेट्स। रीजनल सेंटर्स जो हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान में सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, सार्क ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सेंटर, सार्क एनर्जी सेंटर्स। एंड जो दिल्ली इंडिया में है वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, साउथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स। एंड ढाका बांग्लादेश में सार्क एग्रीकल्चर सेंटर है। एंड द मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, करंट सेक्रेटरी जनरल जो अभी हैं पॉइंट हुए हैं, MD गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश से हैं। ही वॉज अपॉइंटेड इन अक्टूबर 2023। इनका टेन्योर आई थिंक अगस्त 2025 में एंड हो जाएगा। एंड ही इज़ 15th सेक्रेटरी जनरल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सार्क। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आपको पेपर में ये मैप ज़रूर बनाना है, इससे बहुत अच्छा व्यू आता है, पॉइंट एग्जामिनर को बहुत अच्छा पेपर की प्रेजेंटेशन बनती है। तो मैप्स की आप प्रैक्टिस करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सार्क। अल्लाह हाफिज़।